2008 کے زلزلے نے بہت سی کہانیوں کو جنم دیا۔ آزاد کشمیر کے اس خوفناک زلزلے نے ہماری خالہ کا گھر بھی تباہ کیا اور خالہ خالو کے ساتھ ان کے 2 بیٹے جاں بحق ہو گئے۔ البتہ دونوں بچیاں جو صبح سویرے اسکول جانے کو نکلی تھیں، وہ راستے میں ایسی جگہ سے گزر رہی تھیں جہاں ارد گرد بلڈنگ یا گھر موجود نہ تھے، لہٰذا وہ چلتے چلتے میدان میں گر گئیں۔ ان کو معمولی چوٹیں آئیں مگر جان بچ گئی۔ دونوں بہنوں کو میرے والدین اپنے گھر لے آئے۔ بڑی کا نام صبا اور چھوٹی کا نام شیبہ تھا۔ ان کے والد نے ایک مکان ہمارے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر خریدا ہوا تھا۔ ان کا ارادہ اس گھر میں شفٹ ہونے کا تھا، مگر قدرت کو یہی منظور تھا کہ انہوں نے اپنے آبائی گھر میں زندگی کی آخری سانسیں لیں اور وہیں ان کی تربتیں بن گئیں۔ جب شیبہ اور صبا بڑی ہو گئیں تو انہوں نے اپنے والد کے خریدے ہوئے گھر میں رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس گھر کی چابی میرے والد کے پاس تھی اور وہی اس کی دیکھ بھال کرتے آئے تھے۔ دونوں اپنے والد کے گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ وہ اپنے گھر میں تنہا رہتی تھیں، تاہم میرے والدین ان کی ہر طرح سے خبرگیری رکھتے تھے۔ ان بہنوں کو اللہ تعالیٰ کے بعد میرے والدین کا ہی آسرا تھا۔ وقت گزرتا رہا، صبا نے ایم اے میں داخلہ لے لیا اور چھوٹی کالج جانے لگی۔ اس تمام عرصے میں امی نے ہی ان کے گھر کی دیکھ بھال کی۔ ان کا کھانا ہماری ملازمہ گلابو پکاتی تھی، کام باقی خود کر لیا کرتی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد دونوں کی قسمت اچھی تھی کہ بڑی بہن کالج میں لیکچرار ہو گئی اور چھوٹی کو ایک لیب میں جاب مل گئی۔ صبا سنجیدہ مزاج تھی، جبکہ شیبہ شوخ و شنگ اور زندگی کے رنگوں میں دلچسپی لینے والی لڑکی تھی۔ وہ پاس پڑوس کی لڑکیوں سے میل جول کو پسند کرتی تھی، تبھی اپنا کچھ وقت سہیلیوں اور عزیزوں کے ہاں آنے جانے میں صرف کرتی تھی، جبکہ صبا کالج سے آنے کے بعد زیادہ وقت اپنے کمرے میں لکھنے پڑھنے میں گزار دیتی۔ اسے کہانیاں اور افسانے لکھنے کا شوق تھا۔ اس کی تحریریں رسائل و جرائد میں چھپتی تھیں۔ وہ ادبی کتب کا مطالعہ کرتی تھی اور اکثر کھڑکی کے پاس کرسی پر آنکھیں مودے گود میں کتاب رکھ کے بیٹھی نظر آتی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی ہمارے باغ میں نکلتی تھی، جو ہمارے گھر کی بیلکنی سے صاف نظر آتی تھی۔ اس دن بھی کمرے میں اس قدر اندھیرا تھا جب میں صبا باجی سے اپنے کالج کے پروگرام کے لیے مضمون لکھوانے گئی۔ وہ کھڑکی کے پاس کرسی ڈالے بیٹھی تھی۔ باہر سے آنے والی روشنی ان کے چہرے پر لیمپ کی طرح پڑ رہی تھی۔ صبا کے چہرے پہ گہرا سکون تھا، مگر وہ اپنی سوچوں میں جانے کب سے گم تھی۔ میں نے ان کو پکارا اور سلام کیا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا۔ سلمہ، تم کب آئیں؟ اس سے قبل کہ میں جواب دیتی، شیبہ کمرے میں آ گئی۔ آتے ہی اس نے کمرے کی لائٹ جلا دی۔ روشنی کی چمک سے صبا کو ناگواری ہوئی اور اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ باجی، آپ تو دن میں بھی شام کیے رکھتی ہیں، دیکھیں تو کون آیا ہے۔ شیبہ کے پیچھے ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر صبا کے چہرے سے ناگواری کے تاثرات ختم ہو گئے۔ اس نے چھوٹی بہن کو ہدایت کی ہوئی تھی کہ وہ ملازمت ضرور کرے، مگر کسی مرد سے بے تکلف نہ ہو اور نہ کسی کو گھر لائے۔ یہ خیام ہے باجی، میرے ساتھ کام کرتے ہیں۔ نہ جانے خیام میں کیا بات تھی کہ اسے دیکھ کر صبا کا موڈ آف نہیں ہوا۔ اچھا خیام، تم باجی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرو، میں چائے لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ میں نے مہمان کو دیکھ کر باجی سے اجازت چاہی تو بولی، تم بیٹھ کر مضمون لکھو اور اپنا کام کرتی رہو، مہمان تم کو کیا کہتے ہیں؟ یوں لگتا تھا جیسے میں مضمون لکھنے میں محب ہوں، لیکن مجھ سے کچھ بھی تو لکھا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ کمرے میں آج باجی کے ساتھ ایک غیر کی موجودگی کا احساس میری توجہ کو درہم برہم کیے ہوئے تھا۔ صبا نے میری اس کیفیت کو پا لیا اور کہا، سلمہ، اب تم گھر جاؤ، مضمون تیار کر کے لے آؤ، میں ٹھیک کر دوں گی۔ گھر آ کر مجھے چین نہیں آیا، کیونکہ اس معاملے سے خاصی دلچسپی ہو گئی تھی۔ میں بیلکنی میں چلی گئی، جہاں سے باجی کا گھر صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے والی سڑک بھی دکھائی دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ مہمان واپس جا رہا تھا۔ وہ کافی حشاش بشاش نظر آ رہا تھا، جس سے اندازہ ہوا کہ صبا باجی نے اس سے اچھی طرح بات چیت کی ہے۔ اس کے بعد اکثر دن کے وقت قیام ان کے گھر آنے لگا۔ ہم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ دونوں بہنیں اچھی شریف لڑکیاں تھیں، یوں کسی سے نہ ملتی تھیں۔ دراصل یہ شیبہ کی شادی کا مسئلہ تھا، والدین تو تھے نہیں، اس لیے اس مسئلے کو صبا باجی نے ہی حل کرنا تھا۔ امی کو انہوں نے اسی قدر بتایا کہ وہ گاؤں سے نوکری کی غرض سے آیا تھا۔ گاؤں میں اس کی ماں تھی، بہن بھائی تھے نہیں، اور باپ بھی اس دنیا میں نہ تھا۔ سب ہی زلزلے کی نظر ہو چکے تھے۔ اس کو اسی لیب میں ملازمت مل گئی جہاں شیبہ کام کرتی تھی۔ اس کو ادب سے لگاؤ تھا، وہ صبا کی تحریریں پڑھتا رہتا تھا۔ جب اسے شیبہ کی زبانی پتہ چلا کہ صبا اس کی بڑی بہن ہے تو وہ اس سے ملنے کا مشتاق ہوا۔ خیام اور شیبہ کی ملاقاتیں لیبارٹری میں ہوتی تھیں۔ اس کو لگا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، تبھی وہ اس کو بہن سے ملانے گھر لے آئی تھی۔ ایک دن خیام نے شیبہ سے پوچھا کہ تمہاری باجی اس قدر سنجیدہ اور کم گو کیوں ہیں؟ ہاں، لکھنے والے لوگ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دراصل امی ابو کے خلا کو وہ بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی، نہ کسی سے ملتی جلتی ہیں، بس اپنے کمرے میں کالج سے آ کر بند ہو جاتی ہیں، لکھتی پڑھتی رہتی ہیں، باتیں اس لیے نہیں کرتی کہ اپنی ساری باتیں، ساری سوچیں تحریروں میں بیان کر دیتی ہیں،
बाजी का मुझे बड़ा सहारा है, ये ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये भी शुक्र है कि घर अपना है, इसीलिए मेरे कॉलेज के खर्चे समेत ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। शीबा अब तमाम वक्त खयाम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन खयाम की सोचों का धारा मुड़ गया था। इसके बारे में नहीं, बल्कि इसकी बड़ी बहन से मिलने के बाद इसी के मुतालिक सोचने लगा था। शीबा तो इतनी पुख्ता जहन नहीं थी, इसमें बचपना था, जबकि सबा इससे ज्यादा ज़हीन और पुख्ता सोचों की मालिक थी। ताहम खयाम ने अपने एहसासात शीबा से छुपा कर रखे। अभी वो सबा की शख्सियत से मजीद आगाही चाहता था, इसके बाद ही इसे अपनी जिंदगी के अहम फैसले यानी शादी के बारे में सोचने को तरजीह देनी थी। इन्हीं दिनों सबा ने तबीयत की खराबी के बायस कॉलेज से छुट्टियां ले ली। मैं इनसे ट्यूशन पढ़ने गई तो बोली, सलमा, इन दिनों मुझे यकसुई चाहिए, मैं डायरी लिख रही हूँ, लिहाजा तुम कुछ दिन छुट्टी कर लो। इस वक्त भी वो मेज पर झुकी कुछ लिखने में मसरूफ थी। तभी इत्तला घंटी बजी। आने वाला खयाम था। मैंने गेट पर देखा। वो बोली कि इसको अंदर आने का कह दो। वो अंदर आ गया और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। आज मैंने पहली दफा गौर से सबा बाजी को देखा तो मुझे इनमें काफी तब्दीली नजर आई। पहले वो अपने आप से बेनियाज रहती थी, इन्हें अपने सरापे का होश नहीं रहता था। आज वो खास तौर पर मुझे बनी सवरी लग रही थी, जैसे कोई पहले से खुद को संवार कर किसी का इंतजार करता है। अगरचा इनके सिंगार में भी सादगी थी, लेकिन सादगी में भी पुरकारी थी। इनके बाल सलीके से बने हुए थे, मगर लंबे स्याह बालों का ढीला ढाला जूड़ा इनकी पुश्त पर रूप बढ़ा रहा था और सोने की 2 रुपहली चूड़ियां कलाई में कनकना रही थी। गुलाबी एड़ियों में नए नाजुक चप्पल थे। कमरे में वही हल्का अंधेरा था, मगर खिड़की खुली थी जिससे रोशनी एक खास जाविये से आ रही थी। इस रोशनी के आगवानी रंग में वो किसी हसीन ख्वाब की तरह जगमगा रही थी। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं सबा। खयाम के इस अंदाज़े तखातुब पर मैं हैरान थी, और मेरी हैरानी से बाखबर बाजी कह रही थी, खयाम तुम जल्द आ गए जबकि शीबा अभी नहीं लौटी। ये बात इन्होंने मेरे सामने ऐसे अंदाज में कही जैसे खयाम को किसी भूली हुई बात की याद दहानी करा रही हूँ। तभी खयाम ने मेरी मौजूदगी को नज़रअंदाज करके कहा, क्यों, क्या मैं आपसे नहीं मिल सकता? बाजी ने एक नज़र मुझ पर डाली, फिर गोया हुई। हाँ, क्यों नहीं मिल सकते, लेकिन तुम मुझसे मिलकर बोर ही हो गए। इस बोरियत से तो मुझे अकीदत हो गई है, वो बोला। और ये आज से नहीं, तभी से है, जब से आपकी तहरीरें पढ़ रहा हूँ। तभी मैंने बाजी से इजाज़त चाही और घर आ गई। ये सर्दियों के दिन थे। बाजी बाग में मेज कुर्सी डाले कुछ लिख रही होती थी और खयाम इनसे मिलने आ जाता था। मैं बालकनी से देखती वो दोनों बाग में इस जगह कुर्सियां डाल लेते जिधर धूप होती और बातें करते रहते। यूं लगता जैसे खयाम इनके अफसानों पर इजहार राय के बहाने खुद बाजी की शख्सियत को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ये गुफ्तगू तो एक बहाना था। दरअसल वो दिल में ठान चुका था कि इसने शादी शीबा से नहीं सबा से करनी है, और वो भी इसके इरादे को किसी हद तक समझ चुकी थी, क्योंकि वो अपनी दिली कैफियत का इजहार ढके छुपे लफ्जों में किया करता था। मैं अक्सर देखती कि सबा बातें करती और वो चुपचाप सुनता रहता, और जब किसी बात का जवाब देता तो सबा बाजी को इसके दिल में छुपी मोहब्बत का इशारा मिलता और वो सर झुका लेती, जैसे किसी हकीकत के रूबरू होने से आंखें चुरा रही हूँ। रफ्ता रफ्ता इनके माबैन तकल्लुफ़ व हिजाब महव हो गया। अपनायत का एहसास उरूज को पहुंच गया। एक दिन मैं बाजी के पास ट्यूशन पढ़ने गई। इस वक्त शीबा भी घर पे मौजूद थी। इसने खयाम से न आने की शिकायत की। सबा और खयाम दोनों इस शिकवे पर चुप हो गए। इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि खयाम तो यहाँ रोज आता है, लेकिन इस वक्त जब शीबा ड्यूटी पर होती है। एक दिन शीबा ड्यूटी पर गई, मगर 3 घंटे बाद छुट्टी लेकर आ गई, क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी। घर आई तो हैरत ज़दा रह गई। खयाम को बहन के कमरे में इससे बातचीत करते पाया, जबकि इसने कह रखा था कि वह छुट्टी लेकर गांव जा रहा है, और अब वो इसके घर बैठा हुआ था। इधर बाजी ने भी कॉलेज से छुट्टी ली हुई थी। लम्हा भर को इसे झटका लगा, लेकिन अगले लम्हे वो संभल गई, क्योंकि इसको अपनी बड़ी बहन पर अंधा एतमाद था। इस रोज बाजी का कमरा सलीके से सजा हुआ था और पहले की निस्बत उजला उजला लग रहा था। बिलाखिर वो मोड़ आ गया जब खयाम को शीबा की गलत फहमी दूर करना थी। ये एक मुश्किल अमर था। वो जानता था कि ये लड़की इसके बारे में बहुत से ख्वाब देख चुकी है, जबकि सबा बाजी को महज गुमान था कि शायद इसकी बहन इस शख्स से मोहब्बत करती है। ये अंदाजा नहीं था कि वो शिद्दत से इसे चाहती है और जिंदगी का साथी बनाने का फैसला कर चुकी है। खयाम की मोहब्बत अब चिंगारियां बरसाने लगी थी, और वो अंदर ही अंदर बेचैन रहने लगा था। ढके छुपे लफ्जों में तो अपनी चाहत का इजहार कर भी चुका था, और जहनी तौर पर बाजी सबा को शादी के पैगाम की कबूलियत के लिए तैयार कर रहा था। ताहम वाज़े अल्फाज में अभी तक इसने बात नहीं की थी। डर था कहीं अपनी बहन की वजह से वो इनकार न कर दे या नाराज हो जाए। बिलाखिर इसने वाज़े अल्फाज में कह दिया, सबा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बतौर जीवन साथी तुम में वो सारी खूबियां देख रहा हूँ। मुझको ऐसी ही लड़की की तलाश थी। नाराज होने के बजाय वो सोच में पड़ गई। अलबत्ता साफ कहा कि तुमने शीबा के बारे में क्या सोचा है, जो गालिबन तुमको पसंद करने लगी है, क्योंकि वो हर वक्त तुम्हारे गुण गाती हैं। अगर ऐसा है तो तुम इसका दिल ना तोड़ो। घर
दो अफराद की रजामंदी और खुशनुदी से बनता है, एक फरीक की रजामंदी से नहीं। ये तुमने ही तो अपने एक अफसाने में लिखा था। तो क्या जो कुछ तुम लिखती हो इसमें और तुम्हारे अपने किरदार में तजाद है? क्या तुम इन नज़रियात का प्रचार करती हो जिन पर तुमको खुद यकीन नहीं है? ख़याम ने ऐसी बातें की कि सबा लाजवाब हो गई और इसने सबा को कायल कर लिया कि ये सही है, शादी के लिए सिर्फ एक फरीक का रजामंद होना कोई मायने नहीं रखता जब तक दूसरा भी इस माहिदे को दिल से कबूल ना करे। ताहम वो सोच में पड़ गई। कोई दूसरी लड़की होती तो बात और थी, लेकिन ये इसकी अपनी छोटी बहन का मामला था। इसने कहा, ख़याम, जिंदगी के अहम फैसले इस कदर जल्द नहीं किए जाते। तुम सोच लो, मैं भी सोच कर जवाब दूंगी। कई दिन तक वो खोई खोई और गुमसुम रही। इसकी कैफियत इतनी वाज़ेह थी कि छोटी बहन ने ना समझते हुए भी इसकी परेशानी को समझ लिया। दरअसल सबा अपनी कैफियत और एहसासात छुपा ही नहीं पा रही थी। वो जो सोचती, इसके चेहरे पर इसका अक्स नजर आने लगता। छोटी बहन इतनी सियानी न लगती थी, लेकिन हकीकत में सियानी निकली और आने वाहिद में तमाम मामला समझ गई। इसने ख़याम की बुराइयां बहन से करना शुरू कर दी। ज़रा देखो इस बंदे को, मैंने तो इसको महज एक अच्छे इंसान की तरह देखा था और गलत उम्मीदें लगा बैठा। शायद वो समझा था कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। शादी के नुक्ता नज़र से तो मैंने इसको पसंद ही नहीं किया। खुदा जाने ये ख़याम किस गलत फहमी का शिकार है मेरे बारे में। इसने ये बातें इस महारत से की कि बहन को इसका शक भी नहीं गुजरा कि वो इसकी खातिर ये सब कह रही है। तभी सबा ने सोच लिया कि इस बार जब ख़याम शादी का पैगाम देगा तो इसे मायूस नहीं करेगी। वो समझ रही थी कि ख़याम जैसे शख्स का फिर मिलना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो इसके दिल की बात समझता है और दोनों में मुकम्मल ज़हनी हमआहंगी थी। अब ख़याम जब घर आया तो सबा ने कहा, अच्छी तरह अंदाज़ा कर लो कहीं शीबा तुमसे सचमुच मोहब्बत ना करती हो। वो पहले तुम्हारी बहुत तारीफ़ें करती थी। जब तुमको पहली बार घर लाई थी तब मैं यही समझी थी कि वो तुमको चाहने लगी है और मुझसे शादी की इजाज़त चाहती है, लेकिन अब कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में इसका अंदाज दूसरा है। खुदा जाने से क्या हुआ है, तुम्हारी बहन को मुझसे उम्मीदें हैं कि नहीं मुझे खबर नहीं। इसने कभी ज़बान से ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन तुम मुझे पसंद हो और मैं शादी तुमसे करना चाहता हूँ। ख़याम, मैं मोहब्बत के चक्करों पर यकीन नहीं रखती। अगर तुम यकीन नहीं करती तो फिर ऐसी तहरीरें क्यों रकम करती हो जिसमें मोहब्बत के जज्बात होते हैं? क्या ये सब खेल है? तुम्हारी कहानियों में वाज़ेह तौर पर एक तड़प, कसक और इंतज़ार की कैफियत रहती है, और तहरीरें इंसान के जज्बात की तर्जुमानी करती हैं। क्या तुम्हें किसी का इंतज़ार नहीं? क्या तुम इस ज़िंदगी से खुश हो? तुम लाख छुपाओ मगर तुम्हारी तहरीरें तुम्हारी अंदरूनी कैफियत की खुमाज हैं। देखो सबा, कागज़ और कलम से बाहर भी एक जीती जागती खूबसूरत दुनिया है, और तुम्हारी इस दुनिया से बहुत ज़्यादा हकीकी और बड़ी है जो तुम अपनी सोच की खिड़की के फ्रेम से देखती हो। कभी इस सोच से, इस फ्रेम से, अपनी तसव्वुराती दुनिया से निकल कर तो देखो, हकीकी और जीती जागती मोहब्बत को महसूस करो। शायद तुम्हारी तहरीरों से शाम के साए छट जाएं। सबा हैरत ज़दा रह गई, किसी सोच में डूबी, खिड़की से बाहर नजर जमाए सुन रही थी। अगर वो अच्छी अफसाना निगार थी तो वो भी बेहतरीन मुकर्रर और निकात था। सबा को महसूस हुआ कि वह तसव्वुराती दुनिया का नहीं, हकीकी जिंदगी का बासी है। इसने बरसों ख्वाबों की दुनिया में रहने बसने वाली सबा को पल भर में हकीकत की दुनिया में खींच लिया था। शादी कभी तो करना होगी, इसने सोचा। अगर शीबा इससे शादी नहीं करना चाहती और ये भी मेरे साथ घर बसाना चाहता है तो क्यों ना मैं इसके साथ ही घर बसा लूं। इस वक्त शीबा आ गई। फिजा में रची हुई खामोशी ने इसे सब कुछ बता दिया था कि कुछ देर पहले क्या गुफ्तगू हो रही थी। तभी आगे बढ़कर इसने बड़ी बहन का हाथ ख़याम के हाथ में थमा दिया। जो फैसला करते हुए आप लोग झिझक रहे हो वो मैंने कर दिया। अब इस बंधन की लाज रखना, इसको उम्र भर निभाना, तोड़ना नहीं। फैसला तो बड़ी बहन ने करना था, लेकिन आज छोटी बहन बड़ी से भी बड़ी साबित हो गई। सबा की शादी इसने अपनी खुशी से इस शख्स से करवा दी जिसको वो खुद पसंद करती थी। ये भी ना सोचा कि बाद में वो अकेली रह जाएगी तो इसका क्या होगा। सबा बाजी की शादी हो गई तो ख़याम इसे गांव ले जाने की जिद की। वो ससुराल चली गई। आज कमरे की खिड़की से रोशनी नहीं आ रही थी, बल्कि खिड़की बंद थी और मुकम्मल अंधेरा था। चलो, बाजी की शाम का दिन तो चढ़ा, मैंने सोचा, और शीबा को ढूंढती इसके पास जा पहुंची, क्योंकि जानती थी कि वो अकेली है। शीबा सबा बाजी के कमरे में इनकी कुर्सी पर बैठी थी। कमरे की लाइट ऑफ थी। मैंने बत्ती जलाई। इसने हाथ मुंह से हटाकर मुझे देखा। वो रो रही थी। ये तन्हाई का अजाब था कि बहन की याद, या फिर ख़याम की बेवफाई थी जो आंसू बनकर इस बेचारी की आंखों में समा गए थे। मैंने इसे प्यार किया, गले से लगाया तो इसने मेरे कंधे पर सर रख दिया और जी भर कर रोई। ये दर्द जुदाई था जो इसको रुला रहा था। तभी घर आकर मैंने सोचा कि आज मैं भी कहानी लिखूंगी, इसकी जो कहानियां लिखती थी, लेकिन इसी बहन को एक अधूरी कहानी का रंग देकर तन्हाई के अलाव में जलता हुआ छोड़कर पिया संग चली गई। मोहब्बतें और रिश्ते, आखिर कोई किस पर एतबार करे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।